Growing up pains. Good morning to all of you students. Today we read third chapter Growing up pains यानी उम्र के साथ बढ़ता दर्द। तो क्या बताया गया इस चैप्टर के अंदर? लाइफ इज़ हार्ड, जीवन कठिन है। आई टेल माई सेल्फ एज आई स्टैंड बिफोर द मिरर एंड वॉच ए किन that dreaded scum of a disease playing havoc with my face. I wish I could drive the pimples out with a wave of the hand. Then I tell myself that acne is a temporary ravage that makes life a little less comfortable for a teenager, but it is a sure sign of a child mounting into an adult. तो क्या बताया गया कि जीवन बड़ा कठिन है, और जब राइटर ने शीशे के सामने खड़े होकर के अपने आप को देखा तो उसे अपने शरीर पर कुछ परिवर्तन होता हुआ दिखाई दिया। चेहरे पर छोटी छोटी फुंसियाँ सी निकल रही थी। इसका मतलब ये हुआ कि उस उम्र के साथ बढ़ रहा था और वो एक युवावस्था का बालक था। अब वो वयस्क जीवन की ओर अग्रसर हो रहा था। लाइफ इज टफ, आई टर्न अवे फ्रॉम द मिरर व्हेन इट स्ट्रिक्स मी लाइक अ बोल्ट ऑफ लाइटनिंग. My voice has turned rough, almost raucous. It grates, if I may add. Where has my sweet, soft voice gone? Have I caught a cold? Such gruffness goes hand in hand with a cold, but the common cold and I have nothing to do with each other. At least at this moment is there an uncommon cold, a light ventus. Life lifts my spirit. A common cold is common to all mankind, but every time I catch a cold, it becomes an uncommon one for Appa and Amma. They think I have come down with a dangerous cold, one that could kill. They force me into bed, send for the doctor who pumps all sort of medicine into my system. तो कहता है जीवन कठिन है। और जब राइटर ने शीशे के सामने अपने आप को देखा तो उसे अपनी उम्र बढ़ती हुई दिखाई दी और उसकी जो वॉइस थी, आवाज़ थी, उसमें परिवर्तन हो चुका था। शायद उसे ऐसा लगा हो कहीं ठंड ने उसे जकड़ लिया हो, उसकी वजह से हो गया हो, जबकि ये थी कि वो उम्र की ओर बढ़ रहा था। तो ये एक अलग प्रकार की ठंड थी और सर्दी जुकाम होता था सभी के, लेकिन वो ये उस चीज़ की निशानी नहीं थी, बल्कि हर बार उसे ठंड लगती थी, जुकाम लगता था, लेकिन अब वो उस टाइप का नहीं था, बल्कि एक प्रकार की उम्र का असर था उस पर। तो उसने अपने अम्मा और अप्पा को कहा तो वो भी समझने लगे कि अब ये एडल्ट यानी वयस्क जीवन की ओर बढ़ रहा है। When I teach them for being overprotective, they grunt. How would you know? You are too young to understand our fear. Only our child, the apple of our eye. As if they understand my fear, I too have my fear. It was not there till the other day, but suddenly out of nowhere, it has appeared. It fills all my walking throughs and haunts my dream to it. Try to dispel the fear. I tell myself, only cowards fear. I am no coward, but this bravado doesn't last long. The more I think of it, the stronger becomes the hold of this fear. I am no longer my usual self. I become a stranger to myself. तो उसके माता पिता उसे अक्सर इस बात के बारे में समझाते थे कि ये मत करो, वो मत करो। तो उनको कहता था कि मैं कोई बच्चा नहीं हूँ, बल्कि मैं इन सारी चीज़ों को हैंडल कर सकता हूँ। लेकिन माता पिता के लिए वो बच्चा चाहे कितना ही बड़ा हो जाए, वो हमेशा प्रिय रहता है। तो उसने अपने भय को दूर करने का प्रयास किया और समझाया अपने माता पिता को मुझे किसी बात का भय नहीं है और मैं इस भय को दूर करना जानता हूँ। कायर लोग हैं वही डरते हैं भय से, लेकिन मैं इस चीज़ से बहुत दूर हूँ। तो वो अपने आप को अब अडल्ट या व्यस्त जीवन की ओर अग्रसित कर रहा था। टिल द अदर डे आई यूज्ड टू फील हैप्पी व्हेन अम्मा walked in unannounced, surveyed the room gently, shifted me, this is a room for a pigsty, and quickly got down to the task of cleaning the room. She would work at it with total dedication. The books would go back into the bookcase on side rack. The caps and pens pulled apart by would get reunited. Bits and pieces of crayons that dot the floor would go into the bin. The dust would be swept off the table and the room would gain a fresh look. तब जब उस अम्मा ने उसे कमरे में जाके देखा तो वो उस प्रकार से चीज़ों को उथल पुथल करके रख रखा था, सारी चीज़ें इधर बिखरी हुई थी। तो उसने अपने बच्चे को समझाया कि इस प्रकार से तुम व्यस्त तो जीवन की ओर बढ़ रहे हो तो ऐसा काम नहीं करना चाहिए, बल्कि इस चीज़ों को सभी को संभाल कर रखना चाहिए। How I hate her now when she does that. I have put up a warning on the door, knock before you enter. Beneath the above instruction is the warning, my room, love it or hate it. तो उसने भी अपनी मदर को समझाया कि आप जब भी आओ कमरे में तो नॉक करके आया करो। अब मैं कोई बच्चा नहीं हूँ, बड़ा हो गया हूँ, तो मैं अपने रूम को चाहे कैसे भी करूँ, मेरी मर्जी। Amma sees the notice but behaves as if it is Greek or Latin. She continues to step into my room, unmindful of my privacy. तो अम्मा ने देख लिया कि वो बच्चा जो है अब मना कर रहा है हर चीज़ के लिए। हाउ कैन आई मेक हर अंडरस्टैंड दैट आई नीड प्राइवेसी, कि मैं उसे कैसे समझाऊँ कि मैं बड़ा हो गया तो प्राइवेसी चाहता हूँ,
सीक्रेट चाहता हूँ, अपने जीवन को गुप्त चाहता हूँ। इफ ओनली शी सेंसेस द gossamer thin curtain that has come up between me and my parents, is this what growing up is all about, a matter of individuality, snapping of bonds। तो उसने अपने मदर को समझाया कि इस प्रकार से आप मेरी प्राइवेसी को या गुप्त बातों को छिपा कर रखो, किसी के सामने उजागर मत करो। Who wants to snap bonds with one's parent? Not I. The very thought makes me cry, yet I feel I am drawing away from them। यानी मैं इस प्रकार से अपने आप को उनसे दूर कर रहा हूँ। और I am imagining, I think Appa is watchful and wary when she meets me. Of course, his eyes gleam with joy whenever I walk into his presence. But as it is conscious, it is used to be, or I am unable to feel its warmth because of the curtain that has come up between us. Maybe because of the curtain, he sees me as someone different, a rather misty figure, impressive, vague, and elusive, developing a form that is difficult for him to gauge me. He too is sacred of this new figure। तो उसे खुशी हुई कि जो उसके फादर हैं, अप्पा हैं, वो भी उसकी बढ़ती उम्र को देख करके शायद खुश होंगे कि अब वो समझदार बच्चा बनने जा रहा है और उसको उत्साह बढ़ाएंगे। Is that why at times he makes extra effort to be overtly affectionate? I do not know. Maybe he tries to kill the fear in him by treating me with caution. He finds safety in treating me as a child. He runs his finger through my thick curly hair, hold my head close to his chest and pats me। तो वो उसको प्रेम से समझाते हैं, उसको पीठ को थपथपाते हैं। I would not say I hate him for doing that, but I am not able to enjoy it as I used. Once I would give the whole world for being held lovingly by Appa। तो उसने इस तरह समझाया कि अब मैं बड़ा हो गया हूँ तो अपने पिता की ओर मदद कर रहा हूँ। Now I feel as it is not what Appa should do me, it is not time। I tell myself that he treats me as a grown up। कि उसके पिता भी उसके साथ में अब व्यस्त हो गया तो उसको साथ बड़ों जैसा व्यवहार कर रहे हैं। Especially when he has been reminding me to behave like once। तो वो उसको भी इस प्रकार से अच्छे आचरण की ओर अग्रसर करते हैं। I fall and sleep and scream with pain because of a sprain। Amma is all kindness, not Appa। तो जो उसकी मदर थी वो उसके प्रति ज़्यादा सहानुभूति रखती थी, न कि पिता। ही ग्रोल्स, वो गुस्सा करता था। You are 14, कि तुम 14 साल के हो। समीर नाम था उसका। It is time you learned how to bear pain with stoic courage। You are no longer a child। तो उसकी मदर समझाती थी कि अब बच्चे नहीं हो, बड़े हो गए तो बड़ों जैसा व्यवहार करो। I cannot forget these words, कि बस शब्दों को भूला नहीं। नेक्स्ट इवनिंग, अगली शाम, बिफोर अप्पा हैज़ रिटर्न फ्रॉम ऑफिस, अप्पा जब दफ्तर से आए, आई वॉक अप टू अम्मा, अम्मा के पास गया। शी वेलकम्स मी, तो उसने मेरा स्वागत किया विथ ए बिग स्माइल, एक मुस्कुराहट के साथ। बट द स्माइल टर्न्स इनटू ए फ्रॉन, तो उसकी मुस्कुराहट जो है वो गुस्से में बदल गई। व्हेन आई आस्क्ड हर, जब मैंने उससे पूछा, वेदर आई कुड गो फॉर ए पार्टी एट विशाल हाउस, अम्मा सेज नो, मस्ट बी बैक बिफोर 9, कि मैं अपने मित्र के घर जाऊँ पार्टी में, विशाल के घर। तो अम्मा ने कहा कि लेकिन तुम्हें 9 बजे से पहले घर आना होगा। अम्मा, आई एम ग्रोन अप नाउ, तो अम्मा ने कहा कि अम्मा बड़ा हो गया, बच्चा नहीं हूँ। कैन आई नॉट स्टे आउट टिल ऑल माई फ्रेंड्स लीव, कि मैं अपने मित्रों के पास नहीं रह सकता। मैंने पूछा, यू थिंक यू आर ओल्ड इनफ, कि तुम बहुत बूढ़े हो, टू योर ओन, अपनी मर्जी के मालिक हो। समीर, रिमेंबर यू आर स्टिल ए चाइल्ड, तो मदर ने कहा नहीं, अभी तुम बच्चे हो, इतने बड़े नहीं हुए। इवन तो यू थिंक अदरवाइज, तो कुछ ही तुम सोचो, यू आर इन एट टीनेजर, कि तुम एक टीनेजर अवस्था में हो, युवा अवस्था में हो। दैट रेजेज माई बैकल्स, आई स्टम माई फीट, तो मैंने गुस्से में अपने पाँव को पिटना शुरू किया, चिल्लाने लगा अपनी मदर पर। आई एम ओल्ड इनफ, कि मैं बड़ा हो गया हूँ। अम्मा, ओल्ड इनफ इज टू बी माई ओन, कि मैं अपने काम स्वयं कर सकता हूँ। आई विल नॉट अलाउ माई सेल्फ टू बी ट्रीट लाइक चाइल्ड किड, कि मुझे बच्चों जैसा व्यवहार मत करो मेरे साथ। स्टे, शी गिव्स मी ए स्टैंड लुक एंड असर्ट फैमिली, माई डिसीजन इज फाइनल, कि मेरा निर्णय अंतिम है। नो पार्टी फॉर यू, नॉट टुडे, नॉट इवन आई डू नॉट वांट टू एंड अप एज ए वाइल्ड कोल्ड, कि मैं तुम्हें कोई पार्टी में नहीं जाने दूंगी और तुम इस प्रकार से जंगली व्यवहार मत करो। शी हैज़ हर अवे, आई मिस द पार्टी, लेकिन मैं नहीं जा सका और मैं पार्टी को मिस करने लगा, मुझे बार बार पार्टी का दृश्य दिखने लगा। बट इट डिड नॉट एंडेयर मी हर, लेकिन माँ का हृदय नहीं पिघला। आई सेल्फ, मैं बड़बड़ाने लगा। आई डू नॉट टॉक टू हर, मैं उससे बात नहीं किया पूरे दिन भर। शी कोक्स मी, उसने मुझे सांत्वना दी। प्लेसिड मिटिल आई कम टू हर मॉली कोडलिंग, देन आई हग एंड क्राई, मैं उसकी मातर के लिपट गया और रोने लगा। पेट कैम्स हर रिमार्क, एट 14 ए बॉय मस्ट नो हाउ टू कंट्रोल हिज इमोशन, तुम्हारी समझाया तुम 14 वर्ष के हो तो तुम्हें अपनी भावनाओं पर कंट्रोल करना चाहिए। दैट इज़ द ट्रबल, यही परेशानी है। एम आई अ चाइल्ड, क्या बच्चा हूँ, और आई हैव ए ग्रोन अप, या बड़ा होगा। व्हेन विल माई पेरेंट्स सी क्लियरली, कि मेरे माता पिता कब दिखूंगा मैं, आइदर आई एम ए चाइल्ड और आई एम ग्रोन अप, कि मैं खुद नहीं समझ पा रहा कि बच्चा हूँ या बड़ा हूँ। आई कैन नॉट बी बोथ एट द सेम टाइम, मे बी आई मिक्स ऑफ बोथ, आई डू नॉट नो दैट इज व्हाट मेक्स माई फियर सो स्काई, कि मैं खुद भी ये कल्पना नहीं कर सकता कि मैं क्या कहूँ। आई नो, मैं जानता हूँ, माई फियर विल डाई, मेरा भय मर जाएगा।
इफ माई पेरेंट्स स्टॉप ट्रीटिंग मी लाइक अ चाइल्ड, कि मेरे माता पिता मुझे बच्चे जैसा व्यवहार करेंगे तो मैं बड़ा नहीं हो पाऊंगा, बट नो दे विल नॉट डू दैट, दे हैव देयर फियर्स, दैट इज वाई अम्मा सीज एवरी टाइम आई ट्राई टू assert myself at your age, you need to be kept on a leash, it is for your good, Samir. We shall take the leash off once you are capable of knowing what is right and what is wrong. Freedom never comes in a day. Freedom will be yours once you feel you are mature enough to handle situation. कि स्वतंत्रता वो नहीं है कि तुम जो चाहे वो करो, बल्कि स्वतंत्रता वो है कि तुम अच्छे काम करो, तुम्हें ये पता नहीं है भी क्या सही है क्या गलत है, इसका निर्णय करने लग जाओ तब तुम बड़े मानना. When will that he आया, मैं मुझे कब होगा ये. Appa walks in Amma's warms up to present with a gentle note, then tells me, Samir, everything takes me time. A flower takes time to turn into a fruit. It takes a year before you to go to next season. तो उसने कहा कि भाई हर समय आता है हर चीज़ का, फूल को जो फ्लावर है उसको भी बढ़ने में टाइम लगता है. अप्पा केयरलेस माई आर्म्स एंड से, अप्पा ने मेरे को देखा, नो यू हैव फियर्स, तुम्हें डर लगता है, वी हैव अवर्स, हमें भी डर लगता है, वी मस्ट फाइट आवर फियर्स टुगेदर, कि हमें अपने डर पर जीत हासिल करनी है. यू मस्ट अंडरस्टैंड अवर कंसर्न, कि तुम्हें मेरी भावनाओं को समझना चाहिए. देयर आर सो मेनी टेम्पटेशन, जीवन में ऐसे लुभावनेपन आते हैं, टू विच ए यूथ इज ड्रॉन, जब युवा उसकी ओर आकर्षित होता है. आई डू नॉट वांट टू लिसन देम, मैं उनकी बातों को सुना नहीं. यू नो, तुम जानते हो. नाउ कम्स टू अस, टॉक टू अस ओपनली, लेट अस लर्न टू बी फ्रेंड्स, क्या चलो मित्रों की भांति बात करें. टेक एवरी एडवाइस, हर सलाह को मानो. वी ऑफर एज कमिंग फ्रॉम अवर ट्रू फ्रेंड, तुम सच्चे मित्र हो. वी इन टर्न प्रॉमिस टू डू ऑल दैट वी कैन अप्रिशिएट योर व्यू पॉइंट, हम तुम्हारे सभी दृष्टिकोण को सराहना करेंगे. विल यू लेट मी बी योर ट्रू फ्रेंड, क्या तुम मुझे अपना एक सच्चा मित्र बनाओगे. मी टू, मैं भी बनना चाहता हूँ. अम्मा लिफ्ट माई चिन एंड स्माइल्स इनटू माई आइज, तो अम्मा ने मेरी ओर देखा और मुस्कुराने लगी. आई प्रेस हर पाम एंड ग्रिम हैप्पीली, मैंने अम्मा का हाथ पकड़ा और खुशीपूर्वक बोला. वी आर थ्री फ्रेंड्स, कि हम तीनों मित्र हैं. बाउंड बाई लव, प्रेम से बंधे हुए हैं. वी विल नेवर डू एनीथिंग दैट हर्ट्स द अदर, कि हम ऐसा कोई काम नहीं करेंगे जिससे दूसरे को नुकसान पहुँचे. दैट्स इट, इसीलिए. वी आर हैप्पी नाउ, हम खुश हैं. वी हैव बीन सेट फ्री फ्रॉम फियर, हमने भय को दूर कर दिया है. अप्पा जेंटली रफल्स माई कर ली है, अप्पा ने मेरे सर पर हाथ फेरा प्यार से.